Today is my second lecture about the biology, and first of all, branches of the biology will discuss it in one by one in detail. One is the morphology. Morphology means the shape and structure of the living organisms. So we studies about the branches deals with study of the form and structure of living organisms is called morphology. And second is the anatomy. Anatomy means the internal side of the body, and we will discuss about the plant body. We will discuss about the animal body, and the study of the internal structure like the plants structure, like the animal structure is called anatomy. So we'll define is the study of the internal structure is called anatomy. इसमें हम एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट anatomy and for example animal anatomy, for example human anatomy. And third is the histology. Histology means the microscopic study of the tissues is called histology. And fourth is the cell biology. The study of the structure and functions of the cell. सेल की स्ट्रक्चर्स को और उसके काम को और सेल में होने मौजूद सेल ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी करने का नाम सेल बियोलॉजी है. एंड दिस ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन्स. अगेन we define this branch. The study of the structure and functions of the cells and cell organelle is called cell biology, and this branch which deals with the study of the cell division. And then physiology means study of the functions of different parts of the study. And six is the genetics. The study of the genes and their roles in the inheritance is called genetics. Inheritance means the transmission of the one character from one generation to the another generation. 7 is the embryology. Embryology is the study of the development of the embryo to a new individual. For example, एक बीज है और बीज से एक पूरा पौधा बनना है, और बीज से पौधे बनने की जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, जो काम है, जो अमल है, इस पूरे अमल को स्टडी करने का नाम एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है. Taxonomy, study of the naming and classification of the organisms into groups and subgroups. कि एक नई चीज़ की नेम देना. आपने कुछ चीज़ देखी, आपको उसका नाम नहीं पता, और किसी को भी आपने उसका नाम देना है, उसको क्लासीफाई करना है, उसको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना है, तो इसको नाम कहते हैं टैक्सोनॉमी. द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. एंड 8 is the paleontology, study of the fossils which are remaining of the extinct organisms. जैसे कि एक बहुत ज़माने में एक डायनासोर था, उसका अभी तक जो है वो ढांचा है वो एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ है, वो पैदा हो चुका हुआ है, और उसका वो ढांचा जो है वो फोसिल्स है, और उसकी अकॉर्डिंग हम उस डायनासोर को कहते हैं कि ये दुनिया में आया था. देन इस वी विल स्टडी अबाउट द फोसिल्स एंड अकॉर्डिंग द पैलेontology. एंड थर्ड इज environmental biology deals with study of the interactions. Interaction means राबता between the organisms and उनके माहौल और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो राबता है, उस राबते को स्टडी करने का नाम environmental biology कहलाता है. Social biology means social behavior of animals and to make society. And third is the parasitology. Parasitology means the branch deals with the study of the parasites. Parasites mean जुएं, जो आपके सर में होती हैं, जो लड़की के सर में जुएं होती हैं ना, उन जुएं जो हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे बॉडी से वो ब्लड जो है वो सक करते हैं, तो उस जुएं वो हमें नुकसान दे रहे हैं और बदले में खुद को फ़ायदा दे रहे हैं. दैट इज माई इज द पैरासाइट. पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन टर्न हार्म देम. उसको स्टडी करने का नाम पैरासाइटोलॉजी कहलाता है. बायोटेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशन को VIP कर लें, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लें, ये बार बार पेपर में आती है. बायोटेक्नोलॉजी इसका मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड. कि एक जिंदा जानदार की वो अमल जो वो काम करता है और उससे कोई ऐसी चीज़ बनाए कि एक इंसानियत को फ़ायदा दे, तो हम इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. Immunology is means study of the immune system of the animals which defense of the
बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार बुखार हो जाए और आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती और आपको ऐसे ही आराम आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और बॉडी ने खुद ही उसका डिफेंस कर लिया। इसका इम्यूनोलॉजी। एटोमोलॉजी इसमें स्टडी ऑफ द इंसेक्ट को स्टडी करना। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पैरासाइट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पैरासाइट की वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट, मतलब जिंदा होस्ट का मतलब है घर, जैसे जुएँ हैं, जुएँ जो है वो खुद पैरासाइट है और वो हमारे ऊपर जो है सर में रहती हैं, और जुएँ जो हैं वो सर में रहती हैं और बदले में हमें क्या देती हैं, नुकसान देती है ना। Pharmacology, this is the pharmacology mean is that study of the medicines